Dear children, this is my third video for ray optics highlights. In this video, I will cover astronomical telescope, refracting type, then reflection type, and if time permits, then I will take prism also. Otherwise, prism will be our fourth video. Okay. So, refracting type telescope, in the previous one, a compound macroscope was taken by me. Okay. So, in refracting type telescope astronomical, there are two convex lenses. One is objective lens having very large aperture and very high focal length, and another one is eye lens having a smaller focal length and appropriate aperture. Since it is telescope, so rays will come from infinity, heavenly objects are seen. So rays are coming parallel to each other, and since they are parallel to each other, they are coming from infinity, so they will meet at focal plane of the objective lens and image will be formed here. Image will be formed here. Now this image will act as object for this eye lens. So take one ray parallel to the principal axis and another ray passing through optic center of this lens. Extend back this ray, and it is better if firstly you are making image, then it will be convenient for you. Another ray, it will pass through focus of this eye lens, Fe. Why from focus of this eye lens? Because this ray I have taken parallel to the principal axis. Alright. So you will get image here. Just like compound macroscope, here also we have two cases. So this case is image at least distance of distinct vision. Image at least distance of distinct vision. Okay. Since I have said that it is highlight video, so I have explained the ray diagram. When the image is at D, okay, this length will be what? FO, and this is acting as object for this eye lens, so UE. So as far as the length of telescope, that is distance between the two lenses, L is equal to FO plus UE. FO plus UE. Alright. When you will derive expression for magnification of this telescope, you will get result M is equal to FO upon FE 1 plus FE by D. You have to be very careful. The magnification formula for compound macroscope was, in this case image at D, minus VO upon UO 1 plus D by FE. 1 plus D by FE. And here what you are getting? FO upon FE, if you write sign, not considering the magnitude only. Why minus sign? Because image is inverted. So this is the point of difference. This was in compound macroscope and this is in astronomical telescope. So again conceptual question, what is the reason focal length of objective should be very high, focal length of eye lens should be smaller? See, from formula you have to justify, more is the focal length of objective, more is the magnification, smaller is the focal length of eye lens, more is the magnification. Okay, and length you have. Now a glimpse for numerical. You will be very lucky
इफ यू आर गेटिंग ऑल द डेटाज डायरेक्टली इन न्यूमेरिकल, FO दिया रहेगा, FE दिया रहेगा, ठीक है, केवल वैल्यू पुट करना होगा, लेकिन उसका वेटेज भी कम होगा। इफ आई टॉक अबाउट 3 मार्क्स क्वेश्चन, देन सी व्हाट इज U here, UO, numerical trick you can say. UO is what? Infinity. Okay. FO given, FO given है। चलिए सर FO पता चल गया मुझे, आ गई बात समझ में? ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग UE। UE देखो क्या है भाई, मान लिया FE नहीं दिया गया है, FE इज नॉट गिवन डायरेक्टली, ये दिया गया है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये दूरी क्या हो गया, इस लेंस के लिए इमेज है कि नहीं, इमेज है, तो ये VE हुआ कि नहीं, और ये VE क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, ये D हो गया। तो अगर लैंग्वेज में बात कह दी गई है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो आप कहो सर VE दे दिया गया है, VE दे दिया गया है। न्यूमेरिकल में लेंथ भी गिवन है, सब कुछ तो अननोन रहेगा नहीं भाई, लेंथ गिवन है। देखिए चीज निकलनी शुरू हो गई। FO नहीं दिया गया डायरेक्ट, FO डायरेक्ट नहीं दिया गया, UO दिया गया, UO दिया गया। तो बोलो आप FO निकालोगे कि नहीं, कैसे निकलेगा FO? एक फार्मूला आपके पास है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको ये पता चल गया ऑब्जेक्टिव के लिए, ये पता चल गया, ये इन्फिनिटी है तो ये पूरा 0 हो गया। अगर वो कह दिए कि इमेज, ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर पे, क्या कहा गया कि दिस इमेज इज एट 20 सेंटीमीटर, FO नहीं कर रहा है इनडायरेक्टली, तो आपको FO पता चल गया कि नहीं, क्योंकि V यहाँ पे क्या बन गया, FO ही है। सर जी FO मुझे मिल गया, बस L इज इक्वल टू FO प्लस UE है। L बार बार कह रहा हूँ, L दिया है न्यूमेरिकल में, FO आप अपने दिमाग से निकाल लिए, क्या बचा, UE बचा, UE बचा। VE दे दिया गया है, डिस्टेंस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, -25 रख दिया आप। ये क्या है, UE, UE यहाँ से निकल चुका बता रहा हूँ मैं, UE आपको पता चल गया, तो क्या मिल गया, FE मिल गया। दोबारा सुन लीजिए फटाफट, क्या क्या गिवन है, गिवन है नोट करें, गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज गिवन है, L दे दिया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, अंडरस्टूड है कि UO क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। कह दिया गया है कि इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस इज एट 20 सेंटीमीटर। आप समझदार हैं, आप जान गए वो FO है। वो क्या है, क्योंकि रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, तो इमेज पोजीशन ही क्या हो गया, उस लेंस की फोकल लेंथ हो गई। सर FO मिल गया। मैं कहा बेटा अब क्या करोगे, सर लेंथ आप दिए हो, FO मिल गया मुझे, UE मिल गया। मैं कहा बेटा UE निकाल के क्या करोगे, सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई लेंस के लिए। मैं कहा बेटा अब क्या किया, सर आप कह रहे हो कि इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, VE आप रख दिए -25 सेंटीमीटर, ठीक। UE आप अभी यहाँ से निकाले हो, UE यहाँ रख दिए, सर FE आ गया। हमको बेटा अब कहो सर काम ख़त्म, मैग्नीफिकेशन आप पूछ रहे हो, -FO/FE 1 + FE/D। सर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर में भी बोले थे कि यहाँ पे D -25 नहीं रखना है, यहाँ पे +25 मुझे याद है, मैं वैल्यू फाइंड कर लूँगा। वेरी गुड, बढ़िया न्यूमेरिकल हो गया। ये मैं डायरेक्ट आपको लेवल 3 बताया, लेवल 1 की चर्चा करते हुए कि लेवल 1 क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यूज विल बी गिवन। ओके, बीच बीच में छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि लेंथ क्या है, ठीक है, 1 मार्कर 2 मार्कर में सब कुछ दिया रहेगा, लेंथ आप बताओगे।
आ गई बात समझ में? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा फोकस इस समय क्वेश्चंस कराने का है। डेरिवेशन के लिए तो बहुतेरी वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, ठीक है, वो ज्योमेट्री मुझे नहीं बताना है। एक बार आप रिकॉल कर लिए हो, नोट कर लिए हो, अभी वीडियो के बाद इसको सोच लेना सर क्या क्या बताए थे। इसका अगला केस है इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज एट इन्फिनिटी, वही टेलीस्कोप है। ऐसा थोड़ी कि इन्फिनिटी पे बनाने के लिए अब एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चे कहते हैं कि सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज भी आप इन्फिनिटी पे बना रहे हैं, ये क्या चक्कर? यही तो प्रॉब्लम थी, मुझे इन्फिनिटी के चीज़ें दिख नहीं रही थी, साफ साफ छोटी छोटी दिख रही थी, और आप इमेज भी इन्फिनिटी पे बना रहे हो। बेटा लोग, लेंस रखने के बाद, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइसेस रखने के बाद इन्फिनिटी की मीनिंग बदल जाती है। क्या हो जाती है मीनिंग? लेंस के 2f के बाद से ही इन्फिनिटी शुरू हो जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इमेज एट इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि इस आई लेंस के 2f के बियॉन्ड कहीं भी आप इमेज बना दो। बात आई समझ में? तो वही मामला, फिर ये हुआ, ये बना, ये FO हुआ, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है। तो अगर इससे बनने वाली इमेज अब इन्फिनिटी पे बनानी है तो ये इस लेंस के कहाँ पे होना चाहिए? फोकल पॉइंट पे होना चाहिए। ओके सर, बहुत अच्छी बात। ये पॉइंट इसका भी फोकस है क्योंकि रेज इन्फिनिटी से आ रही थी, इमेज यहाँ बन रही है, और ये पॉइंट इसका भी फोकस है क्योंकि आपने एडजस्ट किया इस लेंस को आगे पीछे करके, सो दैट दिस इमेज में लाई एट द फोकस ऑफ दिस लेंस। बस काम खत्म। एक्सटेंड बैक किया, इमेज बन गई, हाईली मैग्नीफाइड। ये क्या हुआ? FE। तो इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो गया बच्चों? FO प्लस FE। FO प्लस FE। डिराइव करने के बाद इस केस का मैग्निफिकेशन क्या आएगा? -FO अपॉन FE। इसमें भी न्यूमेरिकल उसी टाइप के हो जाएंगे। चीज़ें डायरेक्ट दी गई हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो लेंस फार्मूला आप यूज़ करोगे। लेंस फार्मूला यूज़ करोगे, जो चीज़ें डायरेक्टली नहीं गिवन होंगी उन्हें आपने फाइंड करना होगा। एक बहुत अच्छी बात थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता दूँ मैं कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन, लिख सकते हैं क्वेश्चन आप, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन मैग्निफिकेशन ऑफ, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन मैग्निफिकेशन ऑफ astronomical telescope if length of telescope is decreased। तो पहले बोल दूं, जिनको आंसर याद करना हो याद कर लें। जब जब भी लेंथ कम करेंगे, ईदर इट इज़ केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इट इज़ केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जितना छोटा डिवाइस होगा मैग्निफिकेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे सर जी? कैसे? देखो, सिंपल फार्मूला यही है, समझ लो फिर लिख लेना। बेटा लोग, ये वास्तव में क्या है? ये UE है। ये क्या है? UE है। ये वास्तव में क्या था? UE था। स्पेशल केस में क्या हो गया? FE बन गया। ठीक। जब भी लेंथ कम करना होता है डिवाइस का तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को नहीं छेड़ते। ये एक मैन्युफैक्चरिंग मामला है, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप। मतलब किसे नहीं छेड़ते? ऑब्जेक्टिव को नहीं छेड़ते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम लोग UO या FO को नहीं छेड़ेंगे। किसको छेड़ेंगे? आई लेंस को छेड़ेंगे। आपको याद है जब बायो लैब में आप प्रैक्टिकल करते होगे, जब एडजस्टमेंट करते होगे, तो आपके आँख के पास जो लेंस है ना, वो ज़्यादा आगे पीछे होता है,
ऑब्जेक्ट के पास वाला नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता। क्यों? वहाँ स्लाइड रखी है, आप देखने में मशगूल हो, पता चला कि लेंथ बढ़ा दिए, वो स्लाइड टूट टाट गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग मामला होता है। आई लेंस वाली चीज़ चेंज की जाती है, आई लेंस चेंज किया जाता है। तो आता हूँ वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का लेंथ डिक्रीज़ करना, लेंथ डिक्रीज़ करना मतलब यूई कम करना है आपने, ठीक है। यूई कम जैसे ही कि ये भी वास्तव में क्या यूई है, स्पेशल केस में एफ ही बन गया है। जैसे ही यूई कम किए मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो लिख लीजिए विद हेल्प ऑफ टू सपोर्टिंग फार्मूलाज। सिंस आंसर लिख रहे हो एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, ऐसे ही सर्किल बना सर्किल बना के यू ई लिख लीजिए, सॉरी सर्किल बना के क्या लिख लो, यू ई। यहां भी सर्किल बना के यू ई लिख लीजिए। when length is decreased, when length is decreased, UE has to decrease, UE has to decrease, and from second formula, if UE decreases, magnification will increase, magnification will increase। तो ये था बच्चों रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक। अब जब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पिछली वीडियो में और टेलीस्कोप इस वीडियो में पढ़ा लिया, तो इनका बेटा लोग एक बड़ा कंबाइंड एक क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअल टाइप का। कोई सा भी आप सैम्पल पेपर उठा लोगे, कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा लोगे, ठीक है, सब में मिलेगा। ऐसे 2, 3, 4 लेंसेज दिए जाते हैं और इन लेंसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाएगी। जैसे फोकल लेंथ दे दिया गया और अपर्चर दे दिया गया। अपर्चर जानते हो ना, साइज, ओपनिंग, छोटा लेंस की बड़ा लेंस, अपर्चर, अपर्चर दे दिया गया। इनका डेटा दे दिया गया। मान लिया इसकी फोकल लेंथ दे दी गई 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, इसका दे दिया गया कुछ 3 सेंटीमीटर, ठीक। इसका अपर्चर दिया गया 40 सेंटीमीटर, इसका दिया गया 10 सेंटीमीटर, इसका दिया गया कुछ मान लो 5 सेंटीमीटर का दिया गया। क्वेश्चन क्या है, डेटा ऐसा दे दिया गया, कहा गया कि सेलेक्ट द लेंसेज फॉर मेकिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, सेलेक्ट द लेंसेज फॉर मेकिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो देखो आंसर लिखने का तरीका, पहले कोई एक बता दो, आप टेलीस्कोप बता दो। अब जब टेलीस्कोप बताओगे तो टेलीस्कोप में 2 लेंसेज है बच्चों, दोनों आपने क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं टेलीस्कोप, देख रहे हो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए और अपर्चर भी। तो जो सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस है और उसका अपर्चर भी ज़्यादा है, वो आप छांट लिए, क्या, L1 हो गया टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव, और आई लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। कह दो सर ये 2 हैं कम है वाली, कौन सा मैं लूँ, ठीक, कौन सा लूँ। देखो ये ज़्यादा कम कि ये ज़्यादा कम, ये ज़्यादा कम है, लेकिन थोड़ा इसका एक मामला ये है कि इसकी साइज़ बहुत छोटी है, इसकी साइज़ बहुत छोटी है, तो ये ले सकते हो आप। क्यों साइज़ बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, कि जो इमेज बन रही है इसकी भी तो कुछ हाइट है ना, हाइट है, कम से कम ये लेंस इतना छोटा तो ना हो कि इसको भी कवर कर सके। तो हालांकि डेटा इतने क्लोज नहीं दिया जाता है, बहुत थोड़ा दिया जाता है। L2 आप ले लिए क्या, आई लेंस ले लिए। तो टेलीस्कोप के दोनों लेंसेज आप हाईलाइट कर दिए, ठीक। अब आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप, रब कर दो इसे, L1 ऑब्जेक्टिव हो गया, L2 आई लेंस हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, CM कंपाउंड माइक्रोस्कोप
जो नहीं देखा है वीडियो, ठीक वीडियो नंबर 2 मेरी देख लेंगे ये रे ऑप्टिक्स हाइलाइट्स में। आई ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी वेरी, बोथ द लेंसेज शुड बी ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। किसकी बात कर रहा हूँ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। बोथ द लेंसेज शुड बी ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो ये देखो L3 क्या हो गया? L3 हो गया ऑब्जेक्टिव और L2 हो गया आई लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका कोई रोल नहीं। बात आ गई समझ में? ठीक, निश्चित ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब थोड़ी सी बात मैं कर लूं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, आपके सिलेबस में है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब बात आती है कि जब ऑलरेडी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बन चुका था तो रिफ्लेक्टिंग टाइप की क्यों ज़रूरत है? भाई मार्केट में कोई चीज़ कब आती है? जब पिछली वाले में कुछ गड़बड़ी लगती है या पिछली वाली थोड़ी महंगी होती है तब ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल यहाँ भी वही बात थी, रिफ्रैक्टिंग टाइप में कुछ गड़बड़ी थी, थोड़ा बल्की था साइज़ में, क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करनी थी, तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप आया, रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, खुशखबरी ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप में कैसेग्रेनियन टाइप, कैसेग्रेनियन ग्रीक वर्ड है, एक इसमें ह्यूज कॉनकेव मिरर होगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप है, मिरर रहना ही रहना है, रेज आ रही हैं हेवनली ऑब्जेक्ट से, इसका कहीं फोकस होगा वहाँ मीट करेंगी, लेकिन फोकस से पहले ही एक आप रख दोगे कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रख दोगे आप। इसको पूरा पेंट नहीं करना है, रेज रिफ्लेक्ट होके मीट की। अब ये रेज ऐसे ही हवा में तो नहीं आपको इमेज दिखाई पड़ेगी, आईपीस होता है, ये सिलेबस में नहीं है सीबीएसई 12th में। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज के हेल्प से एक डिवाइस होती है आईपीस, आगे आप पढ़ोगे जब ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करोगे, हाइगेंस आईपीस एंड रैम्सडन आईपीस, साइंटिस्ट का नाम था। हाइगेंस तो खैर यही जान जाओगे, वेव ऑप्टिक्स की वीडियो बनाऊंगा उसमें आप जान जाओगे। तो यहाँ इमेज बन गई, वास्तव में इसका फोकस कहाँ था? यहाँ कहीं था फोकस। किसका फोकस? कॉनकेव मिरर का। ठीक, बस इतना ही इसमें पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, और अभी लिखा दूंगा मैं कि रिफ्लेक्टिंग टाइप की क्या अच्छाइयाँ हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्शन टाइप। लेकिन अभी रे डायग्राम बना है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की चर्चा कर लूँ मैं। न्यूमेरिकल बेटा इसी बेसिक से निकलता है, बताऊँ आपसे। ये क्या है? कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट है, तो ये दूरी आप क्या कह दोगे इसको? एफ ओ कह दिया, ऑब्जेक्टिव है ये, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव मिरर मान लो इसको, ऑब्जेक्टिव मिरर मान लो ये है। ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कुछ दिया जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स को x कह दूं अगर मैं, x क्या है? डिस्टेंस, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स। क्लियर? ये दो चीजें दी गई हैं, मान लिया। कहोगे सर पूछा क्या गया है? कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो ये रे ऑप्टिक्स का आखिरी पार्ट है, अगर प्रिज्म को छोड़ दूं मैं, ये जो रेज जा रही थी बच्चों, यहां मीट करती कि नहीं करती ना? तो क्या दिस पॉइंट ए कह दो इसको,
दिस पॉइंट इज नॉट एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ए क्या है, इसके लिए क्या काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नोट कर लें, ए दैट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर is as virtual object for convex mirror। मतलब ये दूरी u है किसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कह दो सर u तो मिल गया मुझे, कैसे मिल गया, U कॉन्वेक्स, ये गिवन है, FO गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स गिवन है, ध्यान से देखिएगा, FO माइनस एक्स गिवन। इन न्यूमेरिकल क्या क्या गिवन है, FO गिवन है, X गिवन है, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। कहो सर पूछना क्या है, बेटा मुझे पूछना है फाइनल इमेज पोजीशन। क्या पूछना है, फाइनल इमेज पोजीशन। फाइनल इमेज पोजीशन मुझे पूछनी। कह दो सर हो तो गया। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप क्या निकाल लिए, यू कॉन्वेक्स निकाल लिए। दोबारा सुनिए कैसे, सर FO गिवन है आप कह रहे हो, X गिवन है, यू कॉन्वेक्स आ गया, F कॉन्वेक्स गिवन है। सर जी और चाहिए क्या, सब तो बता दीजिए आप कैसे। 1/v मिरर है बेटा लो, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये सब काम किसके लिए कर रहे हो आप, कॉन्वेक्स के लिए कर रहे हो, कॉन्वेक्स के लिए। सरेंडर नहीं करना है। कोई बच्चे कहता है न्यूमेरिकल के नाम पे वो हालत उनकी ख़राब हो जाती है कि पूछो नहीं। बेटा न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल 1-2 कर लोगे तुम्हारी थियरी और क्लियर हो जाएगी। कभी थियरी 100% क्लियर हो नहीं सकती, 70% क्लियर हो जाए। हिम्मत करो न्यूमेरिकल करने का, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने का, 2-3 लगा लोगे, कहोगे अरे अब तो थियरी मेरी जो 70 थी वो 100 पे पहुंच गई। उसके बाद तो बस जीत तुम्हारी है। तो कॉन्वेक्स के लिए आपको क्या चाहिए, V चाहिए। U कॉन्वेक्स मिल गया, F कॉन्वेक्स गिवन ही है, आ गया। बेहतरीन सा न्यूमेरिकल है, NCERT में कर लोगे, फिगर बना के दिया गया है। सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट न्यूमेरिकल है, फिगर बना दिया गया है। चीज़ें ऐसे बनाई गई हैं, लैंग्वेज में दी गई हैं। फटाफट रिपीट कर दूं क्या क्या दिया गया था बेटा लोग, क्या क्या दिया गया है। ऑब्जेक्टिव मिरर कहो या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स गिवन है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ गिवन है। सर जी रे डायग्राम मुझे मालूम था, रे डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल है, X निकाल लिया मैं, ठीक, सब कुछ मालूम है, या X गिवन था तो ये U हो गया। बस ये मेन चीज़ ध्यान देना, इस मिरर के लिए ये U है। कहोगे सर साइन तो आप बता नहीं रहे हो, साइन आप बताओगे, साइन आप बताओगे। FO जब ये फार्मूला आप लगाओगे तो कहीं साइन में नहीं रखोगे, ये दूरी है, ये 10 मीटर, ये 4 मीटर, तो दूरी कितनी आ गई, 6 मीटर। साइन कन्वेंशन आप फार्मूले में लगाओगे, जो U की वैल्यू आएगी यहाँ पे U कॉन्वेक्स हो तो प्लस ही होगा ना। यहाँ क्या रखोगे, यहाँ क्या रखोगे, देखते हैं। ये U क्या है, यही है ना। डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, वीडियो 2 में बताया था, डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं, इसकी डिस्टेंस मेजर करनी यहाँ से मेजर करेंगे, और इंसिडेंट रे भी ऐसे ही जा रही है, तो U का साइन प्लस लोगे, U का साइन क्या लोगे, प्लस लोगे। ये किस मिरर की बात हो रही है,
कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही। कॉन्वेक्स का मतलब भी प्लस, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स का मतलब ही प्लस। चलिए, साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो गया। दोबारा सुनिए, यू कॉन्वेक्स लिखाते समय ये मत सोचना अरे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है तो यहाँ माइनस रख दो, पूरा मामला गलत हो जाएगा। ये कोई रे ऑप्टिक्स का फार्मूला नहीं है, ये तो सिंपल फार्मूला है कि यहाँ से ये दूरी है 50, ये दूरी है 30, तो ये दूरी हुई 20। यहाँ कोई साइन नहीं लगता है। बार बार कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन रे ऑप्टिक्स के फार्मूले में लगता है, लेंस के फार्मूले में, मिरर के फार्मूले में, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के फार्मूले में, पावर के फार्मूले में, मैग्निफिकेशन के फार्मूले में। ये तो सिंपली एक कॉमन सेंस का डिस्टेंस है बेटा लोग। आई बात समझ में? ठीक, ये हो गया आपका, बढ़िया क्वेश्चन था। अब मुझे ये बताना है कि ये रिफ्लेक्टिंग टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी। लिख लें फटाफट, क्यों रिफ्लेक्टिंग टाइप की ज़रूरत पड़ी। शार्पनेस ऑफ इमेज इज मोर, शार्पनेस ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप इज मोर, sharpness of image by reflecting type is more than refracting type, क्योंकि रिफ्लेक्शन से हो रहा है, एब्जॉर्बशन कम हो जा रहा है। लेंसेज में थोड़ा सा एब्जॉर्बशन होता है, लेंसेज में क्या होता है, एब्जॉर्बशन हो जाता है, रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक, दिस इज स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। स्मॉल इन साइज, लेंस भारी होते हैं, स्मॉल इन साइज and light in weight. Third, there is no, खतरनाक शब्द आ रहा है, पहले सिलेबस में था, डिलीट हो गया है। There is no spherical and chromatic aberrations. There is no spherical and chromatic aberrations. ये क्या होता है, लेंसेज में होता है, पहले एब्रेशंस होते थे। देख लो बेटा, कोई लेंस है, वाइट लाइट आ रही है, 7 कलर्स हैं, पिछली वीडियो में बता चुका, हर कलर की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। हर कलर के लिए म्यू अलग अलग है तो फोकल लेंथ अलग अलग होगी। वायलेट यहाँ फोकस होगा, रेड यहाँ फोकस होगा, बीच में सारे कलर्स फोकस होंगे। तो जो इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज मुश्किल से मिलती है लेंसेज में। एक उनका दायरा होता है, एक रेंज होता है, उसको स्फेरिकल एबरेशंस कहते हैं। ठीक, हर कलर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। क्रोमेटिक एबरेशन होता है, एबरेशन मीन्स शॉर्ट कमिंग, दोष। तो ये किस में होगा, लेंसेज में होगा। और लेंस कहाँ लगा था, टेलीस्कोप में लगा था, रिफ्रैक्टिंग टाइप में लगा था। मिरर वाले में ऐसा कुछ नहीं है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन। ठीक, इसमें करेक्शन किया न्यूटन महोदय ने और उसको कहा न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। तो न्यूटोनियन टाइप भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ही है। ये कैसग्रेनियन था, क्या है ये, कैसग्रेनियन टाइप, कैसग्रेनियन टाइप, न्यूटोनियन टाइप, न्यूटोनियन टाइप। न्यूटन ने कुछ खास नहीं किया, पैराबोलिक ले लिया ताकि और ये कन्वर्ज कर सके रेज को। ठीक, रेज आई पैरेलल, या इन्होंने प्लेन मिरर सेट किया 45 डिग्री पे। क्यों 45 पे बताता हूं। रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई, रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई, इमेज बन गई। जब उन्होंने 45 पे सेट किया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसा कर्वेचर था इसका, रेज जल्दी फोकस्ड हो गई और ब्राइट इमेज बनी, जल्दी फोकस हो गई और
ब्राइट इमेज बने। तो न्यूटोनियन टाइप का मकसद केवल और केवल एक ये था कि इमेज नज़दीक बनाना एंड ब्राइटर देन दिस बनाना। तो पूछा तो नहीं गया है कि न्यूटोनियन टाइप कैसग्रेनियन से किस मामले में अच्छा, नहीं, न्यूटोनियन टाइप कैसग्रेनियन से किस मामले में अच्छा। तो न्यूटोनियन में इमेज इज मोर एट मोर शॉर्टर डिस्टेंस, इमेज इज एट मोर शॉर्टर डिस्टेंस देन कैसग्रेनियन एंड मोर ब्राइटर देन कैसग्रेनियन टाइप। बात आ गई समझ में। तो इस वीडियो में मैं केवल टेलीस्कोप कवर कर पाया, ठीक, क्योंकि बीच बीच में चर्चा कर रहा था मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी। क्लियर। तो इसलिए मैं प्रिज्म नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। हाई वेटेज चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स, इसकी मैं 5 वीडियो 6 वीडियो भी बना दूं तो मुझे कम ही लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद आप वेट करते रहे। मैं अपनी किसी वीडियो में नहीं कहता हूं कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं ताकि लाइक एंड सब्सक्राइब आप करेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगी चीज़ें, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है, आपको और अच्छी अच्छी फिजिक्स में देने का हमको मौका मिलता चलेगा। तो वेट कीजिए हमारी चौथी वीडियो का, जिसमें मैं कवर करूंगा प्रिज्म और उसके बेहतरीन न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ये तो कुछ नहीं मुझे लगा, ठीक है, इससे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको प्रिज्म में। डेरिवेशन के सारे स्टेप्स बताऊंगा मैं उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें कई डेरिवेशन के बीच बीच में जो फार्मूले मिलते हैं, दैट फार्मूला विल बी हाईली एप्लीकेबल इन न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। तो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आज सर्दी बहुत है इसलिए मैं सोचा थोड़ा कैप वैप लगा के एक वीडियो बना दूं, ठीक है, क्योंकि अभी लंबी जर्नी हमें करनी है। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।